Hello everyone, I'm back with another video. I hope you have liked my first video. So in continuation with the first video, part 1, chapter 1, class 11th, I am continuing the next topic, that is users of accounting. So topic for today's discussion is users of accounting. There are two types of users of accounting. One is external users and another one are internal users. If I talk about the internal users, they are users who have an access to significant information of firm. External users are users who do not have access to significant information of firm. Internal users means those who are internal to firm. That means they are directly related टू फर्म. ये ऐसे यूजर्स होते हैं जो फर्म के लिए इंटरनल हैं, जो फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑफ फर्म के साथ, दोज हु कैन एक्सेस द significant information of the firm, directly access. But external user means बाहर के users, जो हमारी फर्म के भी इंटरनल यूजर नहीं है, but they are the external users. They belongs to the external environment and are not directly related to firm, but somehow they are connected to the firm, but they are not directly related to firm. This is the major difference between external users and internal users. I hope this is clear. External means those who belongs to the external environment. Internal means those who belongs to the internal environment of firm. In contrast to this, I'm telling you about the types of external users and the categories of internal users. Okay, so let's just understand the various types and categories of external and internal users. So if I talk about number one, the internal users. So who are internal users? इंटरनल यूजर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास बेटा तीन तरीके के आते हैं. एक है हमारा ओनर, एक है हमारा मैनेजमेंट एंड एक है हमारा employees. You know what? There is one contradictory statement about employees. If you will go through the books nowadays, either it's T.S. Garewal or it's D.K. Goyal, you will find employee as an external user. But we cannot say that employees are the part of external users. They are directly related to firm, so therefore they will be considered as an internal user of the firm only. Okay, so there are three internal users, those who are directly related to firm. One is owner, one is management, one is employee. And very simple funda, as I told you earlier also in my first video, that I will only be talking about all those pointers. I will be giving you the most easiest ways so that you can remember each and every point. So similarly, I'm only giving you the major pointers to remember that being an internal user, why an owner requires the financial information. क्यों चाहिए एक ओनर को? हमने जो फर्स्ट वीडियो में किया कि यूजर दैट फाइनली कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द एंड यूजर्स, तो वो एंड यूजर्स मेरे कौन हैं? वो एंड यूजर्स या तो मेरे इंटरनल हो सकते हैं बेटा, या वो मेरे एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं. तो मेरे इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आता है मेरा ओनर, मेरा मैनेजमेंट, मेरे एम्प्लॉयज़. अब इन्हें क्यों चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई एज एन इंटरनल यूजर यू रिक्वायर the financial information, or why as an employee of the firm you require the financial information, or why as an owner of the firm you require the financial information. So very simple, very easy to understand logically. Just think logically. Accountancy is all about understanding the logics and then coming to the conclusion, rather rattafying it. I told you in the first class also. So if I talk about the internal users, number one, I'm talking about owner. Who is the owner who contributes towards
what's the capital of the firm, why owner requires the financial year information at the end of year. क्यों चाहिए ओनर को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन साल के एंड में? बेटा उसे इसलिए चाहिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक बिजनेस के ओनर हैं, आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होगी साल के एंड में? आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन साल के एंड में इसलिए चाहिए होगी क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरे because you want to know about the profit and loss of your firm, and you want to know about the financial position of your firm. आपको अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में जानना है. ये तो हो गया कि यूजर ओनर को क्यों चाहिए. सेकंड यूजर है हमारा इंटरनल मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है? देखो, बिफोर वी प्रोसीड विद कि व्हाई मैनेजमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज. व्हाई मैनेजमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? सो यू नो व्हाट, मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद, मैनेजमेंट का बेटा बेसिकली काम क्या होता है? दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद टेकिंग द डिसीजंस for firm. Now you must be wondering ki ma'am, what sort of decisions you are talking about? So basically management takes two type of decision. Management का काम है दो तरीके के decisions लेना बेटा. एक है decision जो कि होगा related to investment, कि भाई कहाँ पैसा invest करें, और अगर कोई लॉसेस है मेरे तो कहाँ पैसा डिसइन्वेस्ट करें. सो बेसिकली मैनेजमेंट दो तरीके के डिसीजंस लेती है. वन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड अनदर वन इज रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट. सो मैनेजमेंट को ये डिसीजंस लेने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस. देयरफॉर व्हाट मैनेजमेंट विल डू, मैनेजमेंट विल रिक्वायर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन come to know about the profit and loss of firm. Same statement you have to write. This is the key to learn about the users of firm. Internal user mein you have to repeat the same things, external users mein you have to repeat the same things. I'm just giving you two key points which you have to write in all the three internal users. And similarly for external users I will be giving you the key points. तो वो key point आपने सभी external users में लिख देना है. ठीक है. अब मैं इंटरनल यूजर की बात कर रही हूँ बेटा. तो इंटरनल यूजर में मेरे पास, मैंने कहा ओनर को इसलिए चाहिए बिकॉज ही वांट्स टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिज फर्म. उसे अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है. सिमिलरली मैनेजमेंट का काम क्या है? डिसीजंस लेना, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, फ्रॉम वेयर टू डिसइन्वेस्ट द मनी. देयरफॉर मैनेजमेंट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो दैट मैनेजमेंट कैन सी एंड एनालाइज वेदर द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज और नॉट, एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन of the company. If company is running in losses, then the management will take the decisions to disinvest the money from the different investment avenues. And if the firm is earning the profit, the management is going to take the decision to invest money in the other investment avenues. And if the firm is earning good money, so management can take the decision to modify the business, to diversify. पर business को बढ़ाने का सोच सकते हैं. तो ये सारे decisions management को लेने हैं. इसीलिए being an internal user, they require the financial information. Got it? Next is employee. बेटा employees are those people who work for an enterprise, जो एक firm के लिए काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम वर्किंग फॉर एन इंस्टीट्यूट, मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रही हूँ, तो क्या मुझे उस इंस्टीट्यूट के बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं पता होना चाहिए? मुझे उसका सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि पूरे साल में वो इंस्टीट्यूट कितना पैसा कमाता है जिस इंस्टीट्यूट में मैं जॉब कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या मेरा जो मैनेजमेंट है, क्या मेरा जो ओनर है बिजनेस का, जो मेरी कमेटी है बिजनेस की जिसमें मैं जॉब कर रही हूँ, वेदर दे आर एबल टू पे मी वेजेस, क्या वो मुझे वेजेस देने लायक है, वेदर दे आर एबल टू पे मी सैलरी, whether they are able to pay me bonus or any sort of incentive. क्या इतनी कैपेबल है ये इंस्टीट्यूशन, क्या इतना कैपेबल है ये ऑर्गेनाइजेशन कि ये मुझे वेजेस दे सके, सैलरी दे सके, बोनस दे सके? तो इसीलिए मुझे भी एज एन एम्प्लॉय प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, मुझे भी एज एन एम्प्लॉय फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है उस फर्म की जिसमें मैं काम करती हूँ, ताकि मुझे पता चले एज एन इंटरनल यूजर कि वेयर द कंपनी इज स्टैंडिंग इन द मार्केट, व्हाट इज द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इन विच आई एम वर्किंग. So these are the key mantras and points to remember the internal users of
firm. Okay, so please go through the internal users very carefully. Okay, so just want to recapitulate in a while that there are two types of users. One is external user, another one is internal user. External, those who are external, belongs to the external environment. Internal, those who belongs directly to the firm. And under internal user we have three categories: owners, management, employees. But under external users we have different categories of users. So let's just go through the different categories of users under the external users. So if I talk about the external users, beta, I have basically different types of external users. You can even name the different external users, like bank. Bank can be the user of my financial information. Government can be the user of my external information. Investors can be the external users. Apart from investors, researchers, do you know about the researchers who grew their research works? They even require the financial information. Bank, government, investors, researchers, they all require the financial information. And apart from them, general public, they are also responsible to know about the financial information of the company. So ये सारे बेटा मेरे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें तो ये सब फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते. ये मेरे अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो क्या मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है बैंक? क्या मुझसे गवर्नमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है? इन्वेस्टर्स मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है? रिसर्चर्स मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है? पब्लिक मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं. समहाउ दे आर पार्ट ऑफ समहाउ दे आर part of my business environment, but they are not directly related to the business. ये indirectly मेरे business के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मेरे external users हैं. और being an external user, इन सबको मेरी financial information एक ही काम के लिए चाहिए. तो वो एक ही काम क्या है, उसका मैं की मंत्र आपको देने जा रही हूँ. आप इसे याद रखेंगे, ये की मंत्र आपको कोई और नहीं देगा. तो लेट मी टेल यू द वन सिंगल वर्ड जिसे आपने एग्जैजरेट करके हर एक एक्सटर्नल यूज़र में लिख देना है एग्जाम में. अगर ये 3 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आपकी टीचर देती है एग्जाम में, तो आपने ये लिखना है कि जितने भी मेरे एक्सटर्नल यूज़र हैं इन सबको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की, इंटरप्राइज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि वो क्रेडिट वर्थीनेस जानना चाहते हैं. दे वांट टू नो अबाउट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फर्म. वो उस पर्टिकुलर कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस. अब क्रेडिट वर्थीनेस का क्या मतलब होता है बेटा? क्रेडिट मतलब उधार पे करने की क्षमता को जानना चाहते हैं. इसलिए एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी कंपनी की, ताकि वो उनकी उधार पे करने की क्षमता, क्रेडिट को पे करने की क्षमता को देख सकें कि वेदर दिस फर्म इज एबल टू पे क्रेडिट्स और नॉट. क्या ये कंपनी उधार देने लायक है? क्या ये मेरा उधार का पैसा टाइम से चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी? एक एक करके समझते हैं किस तरीके से हमें क्रेडिट वर्थीनेस के पॉइंट को हर एक एक्सटर्नल यूजर में यूज करना है. ठीक है बेटा, तो इसमें अगर मैं देखूं, सबसे पहले बेटा मैंने कहा बैंक से आपको क्या काम पड़ सकता है? बैंक आपको देगा लोन. तो अगर आपको चाहिए बैंक से लोन तो बैंक लेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बैंक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक एविडेंस की तरह यूज करेगा और देखेगा कि आपके लास्ट ईयर कितने प्रॉफिट्स थे, कितने लॉसेस थे. उस हिसाब से दे विल चेक एंड मेजर योर क्रेडिट वर्थीनेस एंड दे आर गोइंग टू गिव यू लोन. So therefore, bank as an external user, they require the financial information of the company so that they can come to know about the credit worthiness of firm, whether they will be able to pay back loan or not. Simple and sorted. Fine. Next is government. Government requires financial information so that they can come to know about the credit worthiness of firm. Same term you have to use, but the only thing is government require the financial information so that they can come to know whether the firm is able to pay the taxes or not. The only term which has changed is the reason for which this external user requires the financial information. अब आते हैं मेरे इन्वेस्टर्स को ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? इन्वेस्टर्स को इसलिए चाहिए ताकि वो ये देख सके कि अगर मैंने इस फर्म में इन्वेस्टमेंट की है तो विल दे बी एबल टू पे मी द प्रॉपर रिटर्न्स और नॉट. सो दैट इज व्हाई दे नीड टू नो अबाउट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फर्म.
इसलिए वो उनके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि प्रॉफिट आ रहा था कि लॉसेस में थी फर्म। अगर तो प्रॉफिट में थी तो इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा लगाएगा, और अगर लॉस में थी तो वो पैसा कम लगाएगा या नहीं लगाएगा, ताकि वो ये जान सके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से कि वेदर द फर्म विल बी एबल टू पे बैक द रिटर्न टू हिम और नॉट। ओके, नाउ कम्स रिसर्चर्स। हु आर रिसर्चर्स? ये रिसर्चर्स है कौन? ये रिसर्चर्स हम जैसे लोग ही हैं बेटा। हम लोगों का क्या काम है? रिसर्चर्स वांट टू डू देयर रिसर्च वर्क। इन्हें करना क्या है? इन्हें अपना रिसर्च वर्क करना है, और अपना रिसर्च वर्क करने के लिए इन्हें फर्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे चाहिए? अब देखो, हम क्लास 12th में क्या करने वाले हैं। जब आप क्लास 12th में जाओगे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जब वो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको एक्चुअली अप्लाई करने हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो एज अ रिसर्चर, आप रिसर्चर हैं उस वक्त जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो एज अ रिसर्चर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगे और उसके ऊपर रिसर्च वर्क करोगे। So therefore researchers require the financial statements to conduct or do their research work. Simple and sorted. Next one is public. पब्लिक को क्यों चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? देखो, पब्लिक जो है दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरप्राइज। वाई? बिकॉज दे वांट टू एक्सेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। क्योंकि वो किसी भी इंटरप्राइज के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज, कि वो फर्म कितना कंट्रीब्यूट कर रही है टू द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फर्म का। क्या ये फर्म इतने प्रॉफिट्स कमा रही है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सके, CS, जिसे हम क्या कहते हैं, CSR। क्या कहते हैं बेटा? CSR कहते हैं। क्या ये फर्म इतना पैसा कमा रही है कि ये CSR एक्टिविटी कर सकती है? क्या ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई काम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो ये थे मेरे सिंपल से एक्सटर्नल यूज़र्स, ये थे मेरे सिंपल से इंटरनल यूज़र्स। अब आप अगर बुक खोल के देखेंगे तो हम थोड़ा सा फंबल हो जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि कहाँ से ये एक्सटर्नल यूज़र, कैसे समझूँ, क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। तो आपको कुछ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में 2-3 कीवर्ड्स दे दिए हैं, और आज की डेट में हमें स्मार्ट वर्क करना है, वैसे भी हार्ड वर्क नहीं करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये मेरा जो वीडियो है इसे देखना है, और फर्दर इसके साथ ट्यून्ड रहना है मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है वीडियो को, और अगर आपका मन करे तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं। आप मुझसे अपने डाउट्स को पर्सनल DM करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दिस वीडियो विल वर्क आउट। वंस बिफोर लिविंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू रिकैप्चुलेट मैंने क्या कराया है। मैंने यूज़र ऑफ अकाउंटिंग बताए हैं आज की वीडियो में, जिसमें मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरीके के बताए हैं। इंटरनल जो फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड है, और एक्सटर्नल जो फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इंटरनल यूज़र में हम 2 तरीके के यूज़र्स 3 तरीके के यूज़र्स लेते हैं। एक है ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, जो कि मेरी फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड है। इन तीनों को मेरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है साल के एंड में। क्यों? क्योंकि इन्हें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, related to investment, related to disinvestment. And as an employee, मुझे ये देखना है कि whether this firm is able to pay me the wages, salaries, bonus, incentives or not. As an external user, मुझे क्यों चाहिए financial information? So that I can get to know about the credit worthiness. This keyword you have to remember, whether the firm is able to pay back the loan. बैंक इसलिए देखना चाहेगा क्या ये मुझे लोन दे सकते हैं। गवर्नमेंट इसलिए देखना चाहेगी क्या ये मुझे टैक्सेस पे कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स इसलिए देखना चाहेंगे कि क्या ये फर्म मुझे रिटर्न दे सकती है कि नहीं दे सकती है मेरी इन्वेस्टमेंट पे। रिसर्चर्स इसलिए देखना चाहेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका रिसर्च वर्क पूरा हो। और पब्लिक इसलिए चाहेगी बिकॉज दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द एंटरप्राइज, दे वांट टू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म और एंटरप्राइज टूवर्ड्स द इकोनॉमीज वेलफेयर, टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. So thank you very much for watching the video, and stay tuned. Before you leave, please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you so much.